Good morning, students. In the last video, we have discussed about a combination of registers. Combination of registers are the two types. Number first, series combination. Number second, parallel combination. Now we will discuss about the numericals of series combination and parallel combination. On page 216. On page 216. Of NCERT, page number 2.16. After the complete the topic of parallel combination, we have discussed about the some numericals, but one question is left on page number 2.216. Sorry, 216. Question number second, third, fourth completed, fifth completed, second or third are remaining. So question number second. Question number second. An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel combination. देखो सब कुछ क्लियर है. कोई भी अप्लायंसेज हम यूज कर रहे हैं, कोई भी किसी भी सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में अपने घर पर, तो आपको केवल अप्लायंस नहीं देखने हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है आपको वो चेक करनी है. तो लैंप की तो है R1, लेट कर लेंगे R1 100 ओम. उसके बाद टोस्टर की आपके पास रेजिस्टेंस R2 50 ओम एंड लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर 500 ओम. According to the questions, these are connected in parallel combination. So then first of all we have to find the value of equivalent resistance. You know very well the formula of resistance in parallel combination: 1 upon Rp, 1 upon R1, 1 upon R2 plus 1 upon R3, because it is given in the question. Now put the values of R1, R2 and R3. 100 plus 50, 1 upon 500. LCM of 100, 50 or 500, 500. 100 5s are 50 10s are plus 1 plus 1. 10 plus 5 plus 1 16 upon 500 ohm, but 1 upon R3. But we have to calculate the R3. So RP is equal to 500 upon 16. 4 4s are or 4 125. So 125 upon 4 ohm. But in the question, what is the resistance of the electric iron connected in same sources that, and what is the value of the current through the circuit? These sources are connected up to 220 volt voltage supply. V is equal to 220 volt. R is equal to, after complete the resistance, 125 upon 4 ohm. So now we have to calculate the current, the value of current from the Ohm's law. From Ohm's law, I is equal to V upon R. Value of V 220 volt into R 4 upon 125. I is equal to, and solve it.
I is equal to 7.04 ampere. Then what is the resistance of the electric iron? जो आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है इलेक्ट्रिक आयरन का। तो इलेक्ट्रिक आयरन में रेजिस्टेंस कितना रखा 100 ओम। इसकी वो निकालनी है आपको। क्या निकालना है? सेम सोर्स के लिए आपको निकालना है आर सॉरी आई। तो आर निकालना आपको। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये कितना आपके पास 220 अपॉन आई कितना है 7.04। तो आर इज इक्वल टू 31.25 ओम। ये आपका आंसर। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट। एक न्यूमेरिकल है, एक बच्चे ने पूछा था मुझे पर्सनल नंबर पे, मैं उससे करा रहा हूँ सभी के लिए। सभी करें इस क्वेश्चन को। पेज नंबर है बेटा 109 पर। यही प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, जो बुक में है आपके पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम है जो बुक से ही है। ये क्वेश्चन आपके पास है Why are the coils of electric twisters and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? इसने कहा कि जो आपके पास ये ट्विस्टर्स ये जो कोयल्स होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक कोयल, इलेक्ट्रिक ट्विस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन की, में हम एलॉय से बनाते हैं, मेटल से नहीं बनाते। क्या? तो सबसे जो मेन रीजन है इसका, बिकॉज एलॉयज, जो उसके रीजन लिखना आपको, जो हमारे पास टॉपिक था आपका रेजिस्टिविटी का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। देखो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द वायर और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। वो जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी जो ये आपके पास, ये हमेशा जो एलॉयज होते हैं मिक्सचर से बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, वो ज़्यादा हॉट हो जाता है, और फिर वो पिघलता नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन आपके पास एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम वायर का या मैग्नेट वायर का होता है, बिकॉज इट हैज़ द हाई रेजिस्टिविटी। तो इसने पूछा कि ऐसा क्या रीजन है कि ट्विस्टर और ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, ये एलॉयज की क्यों बनी जाती है मेटल के अपेक्षा? बिकॉज it has the high resistivity and high melting point। तो आपको दो रीजन लिखने हैं इसके, it has the high resistivity and high melting point। ये क्वेश्चन था आपका, एक प्रॉब्लम थी बच्चे की भी, एक मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम है, ये बच्ची ने पूछी थी मुझे कि जो will current flow more easily through the thick wire and thin wire of the same material when connected to the same source, why? तो the current more easily through the thick wire than through the thin wire, because the reason R of thick wire less than the thin wire। जो रेजिस्टेंस होता है किसका, कौन सी वायर का? थिक वायर का, वो ए लेकिन वैसे प्रोपोर्शनल है। देखो क्या बता इसमें, R of A, ये आपके पास वो था, दो थे आपके पास रेजिस्टेंस के, एक ये था एक ये था। तो आप इसमें ये लगाएंगे कैसे, एक थिक वायर है एक थिन वायर है, एक कौन सी है, एक थिक वायर है एक थिन है। तो थिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया से हमेशा ए के रेस्पेक्ट में जो कंडीशन दिखाता है वो दिखाता है थिन पतला, थिक मोटा। तो थिक का ही ज़्यादा होता है, थिन का ही पतला होता है, तो इसलिए जो आपके पास थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। ये भी कंप्लीट आपका, ये प्रॉब्लम्स थी आपकी। एक जो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन कराई,
सीरीज और पैरेलल। उसमें से एक क्वेश्चन बच्चे ने डिस्कस किया मेरे से फ़ोन पे, तो बच्चे ने उसका सॉल्यूशन, सर इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ सभी के लिए। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे ने जो पूछा बड़ा क्वेश्चन पूछा, बढ़िया क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इसके बाद टॉपिक आपका है वो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले एक प्रॉब्लम ए और बी 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम और 1 एम्पियर। ये एक सर्किट आपके पास गिवन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, एक ऊपर तो आपके पास कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, एक नीचे कनेक्टेड है, और ये आपके पास पॉइंट है सी, और ये करंट आपके पास सेम। क्वेश्चन ने पूछा है कि सर जो उसका पहला पार्ट है, जो उसका, ये क्वेश्चन मैंने मोबाइल से पेज पर लिखा हुआ है, मोबाइल से ये बच्चे ने क्वेश्चन मोबाइल में पूछा मुझे। तो पहले वाले का तो 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम, ये 15 ओम है। तो बच्चे ने पूछा सर ये जो पहला पार्ट है इसका व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स, ये आप बता दीजिए, बाकी दोनों पार्ट मेरे हो गए। तो अब आपको पता है कि दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो ये आएगा वो सीरीज में आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है, मेथड है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है करने का। 1 एम्पियर है, इसे 5 ओम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ 5 ओम रेजिस्टर। तो आप भी जानते हैं, देखो ये आपको पता है, ये 1 एम्पियर है। तो क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपकी कि जब हम 1 एम्पियर करंट यहाँ लेंगे बी पॉइंट तक, तो ब्रांच में करंट रेजिस्टर्स 10 रेजिस्टर्स में, 10 ओम के रेजिस्टर में, 15 ओम के रेजिस्टर में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के बाद एक तो करंट ब्रांच में I1 बन गया और एक आपके पास I2 बन गया। तो जो बच्चे ने क्वेश्चन किया वो पूछा मुझे I1 और I1 एंड I2 आप सर बता दीजिए। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे वोल्टेज, इसकी, इस वाले की, इसकी वोल्टेज सॉल्यूशन। वोल्टेज फ्रॉम ए टू बी, V इक्वल टू आई आर। आई कितना बेटा 1, आर कितना 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। वो ध्यान समझना, हमें लेट कर लिया कि लेट I1 बी द करंट ऑफ द 10 ओम रेजिस्टर एंड I2 बी द करंट ऑफ द 15 ओम रेजिस्टर, लेट कर लिया पहले, बट वी हैव टू कैलकुलेट द I1 एंड I2। क्लियर? अब जो इनका आंसर आएगा I1 I2 को, आएगा तो 1 एम्पियर की फॉर्म में, मतलब जो सम आएगा 1 एम्पियर ही आएगा इन दोनों, क्योंकि करंट तो 1 एम्पियर ही कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमें देखना कि डिस्ट्रीब्यूट वो हो रहा कितना कितना है। तो इसमें एक टेक्निक लगा रखी है, नाउ करंट थ्रू ए 10 ओम रेजिस्टर I1 इक्वल टू I इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटू R2, यानी जिसका आपने रजिस्टर पूछा है उसके अलावा जो बचा हुआ है वो लेना आपको, इंटू में IP अपॉन R1 प्लस R2। यानी आप समझ लीजिए कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये समझ लें कि I बराबर V अपॉन R है, क्योंकि ये भी आपके पास V है, भले हम इसे V2 बोल दें, ये समझना V2 है। V2 कैसे, I करंट लिया मैं 1 इंटू R2 कितना है 15 अपॉन R1 कितना है 10 और प्लस 15, क्योंकि R1 R2 ये है, R1 और R2 बराबर R2, तो आपके पास होगा 15 अपॉन 25, 5 3 और 5 5 का, तो I1 आएगा आपके पास 0.6 एम्पियर। I2 आपको निकालना है, टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, तो 1 माइनस 0.6 0.4 एम्पियर
इन द 15 ओम रजिस्टर। देखो I1 कितना आया 0.6, I2 निकालना है तो 1 का एंटर कर रहा है तो 1 में से ही घटा दिया 0.6 तो 0.4 होगा। ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बता दिया। सभी ध्यान से करें क्वेश्चन के टाइप मेथड जो भी यूज करने हैं आपको, और ये सीरीज पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, वो ध्यान से देखना आप कैसे अप्लाई करेंगे इस पर। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, बाकी 2 पार्ट आप कर सकते हो जिसने वैसे क्वेश्चन पूछा था। देखो ए 3 ओम 3 ओम 3 ओम ए और बी, ये आया सर्किट आपके पास। हमें इसका इक्विवेलेंट का वो निकालना, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, टोटल और रिजल्टेंट तीनों एक है। हम यहाँ से चलते हैं ऐसे ही चलते, तो जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये इन दोनों सीरीज में जोड़ रहा है, सीरीज में पैरेलल नहीं है, ये सीरीज है। देखो कितना सिंपल, 3 और 3 की जगह हो गई सीरीज में, आर एस इक्वल टू 3 + 3 6 ओम, ये आ गया। अब इसका दोबारा रीडायग्राम बनाएंगे हम। रीडायग्राम कैसे बनेगा, ए तो जुगा दो ऐसे बनेगा, ऐसे जो ऊपर आया वो कितना है 6 ओम, नीचे कितना है 3 ओम, ए आपके पास जुगा दो, बी सेम। तो अब देखो कितना आसान हो गया ये। अगर ये और ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे होता है तो पैरेलल होता है वो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास ही हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, 1/RP 1/6 1/3 6 एलसीएम 1 + 2 1/RP 3/6 3 1 जा 3 2 जा RP = 2 हो गया आंसर। ये तो ध्यान रखना आपको, रीडायग्राम बनाना जिस पर जाएगा रीडायग्राम वो कभी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेगा। तो ये आपके पास के तरीके मेथड है, और भी टाइप क्वेश्चन है इसमें, 1-2 वही बता रहा हूँ आपको मैं अभी, 1-2 और एनसीईआरटी की हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो इसके जो भी आपके पास जो रिफ्रेशर बुक है उसमें क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से, और ध्यान करके पढ़े सही बच्चे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, टॉपिक कराते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। आज इसका फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इंपोर्टेंट बहुत। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके पास फॉर्मूला है, वो टॉपिक आपका। जब हम किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी एलिमेंट में, ध्यान समझना, जब हम किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी एलिमेंट में हाई करंट को फ्लो करते हैं, जैसे मेरे पास एक रेजिस्टर है R, तो एक टाइम के लिए करना पड़ता है आपको वो, एक टाइम के लिए। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जैसे कि एग्जांपल आपके पास है इलेक्ट्रिक आयरन है, मैंने इलेक्ट्रिक आयरन को सप्लाई दी, और सप्लाई देने के बाद जो उसका एलिमेंट है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, वो रेड हॉट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होने का, बिकॉज इट हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। तो उसमें बता कि जितना भी हम इसमें करंट देंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे, हाई रेजिस्टेंस में हाई करंट सप्लाई करेंगे, तो लॉन्ग टाइम के लिए गर्म होता रहेगा, यानी हॉट रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका टॉपिक दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसकी जो आपके पास जो इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप बुक से देख लेना अच्छी तरह कैसे लिखना है, कैसे आपको
कि कोई भी एक करंट है जो आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ आर, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। जब इसमें क्यू फ्लो करता है तो टाइम लेते हैं टी, तो ये क्या करता है, ये वर्क डन करता है, वर्क डन। तो वर्क डन इसकी जो हीट की कंडीशन है वो उसमें चेंज हो जाती है, तो जो चेंज होगी वो आपके पास हो जाएगी हीट। तो कैसे बताना है कि फिर से जोड़ देते हैं बैटरी से, तो आपने जब बैटरी से जोड़ दिया तो उसमें हीट का जो फ्लो होगा वो रहेगा क्यू आई टी, या सॉरी वी आई टी, वोल्टेज इंटू आई इंटू टी, तो एच आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा, ओम्स लॉ से। तो जिसका बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास है बेटा, एच इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल टू वी आई टी। आपके पास जो फॉर्मूला है वी का वो है आई आर इंटू आई टी, क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। सेकेंड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, एंड नाउ थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, बिकॉज आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और यहाँ स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट आर ऊपर भी है, आर सार कट इंटू टी, तो ये होगा आपके पास एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन द आई करंट फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कैपिटल आर इज flowing for time t, so then the heating effect of current in this circuit on the energy based condition, क्योंकि हीट एक एनर्जी फॉर्म होती है, तो एस इक्वल टू वी आई टी, वोल्टेज है, करंट है, टी है। तो ये आपके पास टॉपिक आपका हो गया। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बस केवल न्यूमेरिकल को रिवाइज करें एक बार फिर, एनसीईआरटी के जो भी आपके पास रिफ्रेशर बुक है, पैरेलल सीरीज को करें। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, RS के इक्वल। पैरेलल में होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, इसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 ये आपको करने हैं। ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो V इक्वल टू IR है, उसका बहुत यूज है। और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो रेजिस्टिविटी फॉर्म में वो R इक्वल टू ρl अपॉन A है। सब ये बेसिक हैं, आपको सभी को याद करने हैं। आपका टेस्ट होगा, टेस्ट जब होगा मैं आपको बता दूंगा आपका टेस्ट कब है, ये साइंस का, ये ध्यान रखना आपको सभी को, क्योंकि आपका लगभग ये चैप्टर पूरा होने वाला है कंप्लीट। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू वेरी मच।